step I'm taking towards Jahangir Art Gallery and my mother is saying next मैं यहाँ आऊँगी ना तो भाविका का exhibition के लिए said that I have MFs and Razas at my place. That man has so many paintings. He's seen a lifetime of paintings. But उन्होंने he wanted my painting in his. Hi friends, welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है, आप लोग जानते ही हैं, हम सब में हीरो। और इसका मकसद यही है लोगों को मोटिवेट करने का अपनी लाइफ, राइट। तो आज जिस गेस्ट को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूँ वो एक कला के क्षेत्र से हैं, उन्होंने फाइन आर्ट्स में ही पढ़ाई की है। बस इतना ही इंट्रोडक्शन दूंगा उनके बारे में। आइए उनसे मिलते हैं, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाविका जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो। और शुरुआत में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप किस टाइप के बच्चे थे, आप कहाँ से हो, और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं भिवंडी से हूँ, born and brought up in भिवंडी। ओके। बचपन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था। बचपन भी पूरा पेंटिंग करने में ही चला गया। और बचपन से आई वॉज वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स पेंटिंग। अच्छा। सो ऑल माई चाइल्डहुड आई जस्ट पेंटेड। अच्छा। आई वॉज 7-year-old when I did my first portrait painting. क्या मस्तीखोर थे? शांत तो मैं कभी नहीं हूँ। काफ़ी मस्तीखोर, काफ़ी very active. Okay. Very always on the verge of doing something. That is my primary education is from All Saints High School. Then I've done my college from Birla High School, and then I was enrolled in an art school. So after my 12th grade, I was in an art school. Okay. So 4 years of art school. तो कॉलेज कैसा रहा? रैगिंग वैगिंग जो होता था? नहीं, आर्ट कॉलेज इज वेरी फन। माई कॉलेज वॉज द बेस्ट। आप वहाँ पे बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस है। इट्स अ वेरी जेस्टफुल कॉलेज। आपको बहुत कुछ करने मिलता है, नॉट ओनली पेंटिंग बट वी हैव सेरामिक्स, स्कल्पचर, एवरीथिंग। आई एम फ्रॉम रचना संसद एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। सो माई HOD was an amazing person, Mr. Mahendra Damle. So he's always guided us to do better things in life. So college was amazing. With my friends and my sir and teachers, they motivated me to where I am today. ये बताइए कि आपकी एक करियर जर्नी स्टार्ट किस हुई, उसके बारे में थोड़ा हमारी दर्शकों से अपना शेयर कीजिए। करियर जर्नी तो चाइल्डहुड से रहा है, आर्ट इंक्लाइनेशन। ऐसा नहीं समथिंग सडन कि अब हुआ या बाद में हुआ। I was always an artist since childhood. I used to always paint the doors, the walls of my house. I was 7-year-old when I did my first portraiture as well, without any art training or something as such. Always inclined towards art, always used to paint, but never knew I could take it as a profession. Art profession भी लिया जा सकता है, इसकी awareness काफ़ी कम थी क्योंकि सोसाइटी मेरे आजू बाजू में ऐसी थी कि nobody used to pursue art था। तो पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए अप्रोच किया कि आई विल टेक फैशन डिज़ाइनिंग एज अ करियर। एंड क्योंकि पता ही नहीं था कि आई कुड बी अ पेंटर, बट आई टू ऑलवेज एडमायर M.F. हुसैन एंड लियोनार्डो डा विंची, वैन गॉग, उनके बारे में मैं पढ़ती रहती थी। जब मैंने डिग्री के बारे में अवेयरनेस आया, immediately I took a U-turn from my fashion designing to my, like I was still studying for a fashion designing course. I was preparing for a fashion designing course. I started preparing for my CET, which you give for fine arts, the basic entrance. My art teacher in my 11th 12th grade, she told my parents that she's born with it, and that is something that stayed with me. And when I heard her say na Bhavika's born with it, I was little कॉन्फिडेंट कि ओके लेट्स टेक दिस। बट मेरा कॉलेज में एडमिशन वगैरह सब हो गया। माई HOD on my first day of my interview, he's looking at my parents and saying, she's very naive to travel. I had never even seen a local train. I've never seen a train itna closely, and directly traveling for a 4-year long degree from Kalyan to Dadar every day. Okay, that was a task for me. Maybe it's easier for some people, I don't know, to each its own is what I believe. So everybody has its own set of struggles, and that was one of my very big struggles. I was little very young. I was 16-year-old I was, and I was like, oh my god, I can't travel by train मतलब but ठीक है, art was so much in me कि मैंने सब agree कर लिया, नहीं मैं कर लूँगा। Sir was looking at my parents like, ये कर लेगी ना। एंड माई पेरेंट्स वर स्टिल इन अ डाउट क्योंकि उनको भी नहीं पता था मैं कर लूँगी कि नहीं, बट मॉम डैड दे बोथ लोग कर लेगी, करने दो, कर लेगी। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग था कॉलेज में आना जाना, इतना ट्रैवल करना, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज,
पेंटिंग्स कैनवसेस लेके आना Correct. जाना, It's a बेसिक big स्ट्रगल task. ऑफ ऑल आर्टिस्ट, Yeah. नॉट जस्ट मी, हर आर्टिस्ट की जिंदगी में ये आता ही है। Mhm. तो बस 4 साल पहले तो बहुत डर लगता था, मैं इतने लोगों के बीच में इतने क्राउड में कभी नहीं गई, बट धीरे-धीरे आई स्टार्टेड गोइंग एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग माय आर्ट स्कूल वाज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी, क्योंकि Okay. वहाँ से जो मेरी ज़िंदगी बदली। Mhm. और फिर आई वाज़ इन माय 3rd ईयर व्हेन वन डे आई वाज़ जस्ट पेंटिंग एट होम and somebody relatives came at home and I got a little disturbed as an artist. I don't know how my father understood this thing, but he understood that my child needs space for Space. painting. हाँ. तो एक पेंटर की जिंदगी में कैसे रहता है, जब वो पेंटिंग कर रहा है ना, तब nobody has to talk, nobody Correct. has to, like, that is this one moment we have of ourselves. That's when we can create. Yeah. To create you need to be in your own perspectives, to pour into our own perspectives. Right. So जब हम पेंट कर रहे हैं तब if somebody is there you just lose that moment and it takes a lot of time to have it back to your own self. So he just saw that happening and I just mentioned one day कि I am unable to paint because there's disturbance, there's you have everybody at home now, your mates coming in, this, that, your easel gets disturbed, you have to immediately shift it here and there, this Correct. and that. And the next thing that I see my father coming to me is with the keys of my studio. तो पहली बार जब मेरा बोर्ड लगा कलाकार आर्ट स्टूडियो, लोग आके फोटो खिंचवानी है यहाँ, तो मैंने बोला ये फोटोग्राफी स्टूडियो नहीं, पर सिटी को स्टूडियो से सिर्फ फोटोग्राफी स्टूडियो का ही पता था, एक आर्ट स्टूडियो एग्जिस्ट करता है सही वो ही किसी को नहीं पता था। तो रोजाना कोई ना कोई आके खटखटा के आप तो करते क्या है मतलब एंड आई वाज सो ब्लैंक, क्योंकि मैंने एक डिग्री लिया है तो मुझे उस चीज की इतनी वैल्यू थी, बट लोगों को पता ही नहीं है, तो सही वो बात। उनकी गलती नहीं थी, दे आर नॉट अवेयर। So every day people used to have questions. So this is something that you do part time? No, this is something that I do full time. Full time. I am an educated professional in the field. So this is something that I'm doing full time. I'm too proud of it. I don't want to do something part time because this is a full time job. Being an artist is not a part time job because it has all your heart. Correct. पूरा आपने जब दिल ही एक काम को दे दिया, दूसरा काम करने की तो दिल बचा भी नहीं और दिल देना भी नहीं। It's been a great journey so far. तो अब ये बताइए इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या आपने कभी कुछ और फेस किया हो? हर फील्ड के अपने चैलेंजेस रहते ही हैं। करेक्ट। हर एक का लाइफ अपना अपना है, टू ईच इट्स ओन इज व्हाट आई बिलीव। करेक्ट। तो इसमें भी अपने थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ आर्ट अवेयरनेस का बहुत प्रॉब्लम है, बेहद प्रॉब्लम था। जब मैंने शुरुआत की तब तो बहुत था, 5 years बैक। तो that time I faced a lot of problems and people understanding that what I do, मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, इसका क्या वजूद नहीं है। है, सब डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। हाँ, तो कोई पेरेंट ऐसा सपोर्ट भी कर रहा है तो लोग एकदम फ्लैबरगास्ट हो जाते थे, ओह माय गॉड समथिंग लाइक दिस, हु परस्यू समथिंग टू दिस एक्सटेंट। एक दिन ने एक बार मुझे कह दिया कि डिजिटल ही है ना, फिर आपका आर्ट वर्क का क्या वैल्यू है। एंड मैं थोड़ा आई वाज यंग तो आई वाज टेकन अबैक, वेंट होम एंड आई एम लिटिल इन टीयर्स दैट मुझसे ऐसे बात किया उन्होंने। एंड माय फादर इज लाइक कि they don't know what an artist is. Correct. That is not your problem to solve. आज भी फोन आते हैं कि 1 घंटे में पेंटिंग चाहिए, 15 मिनट में बन जाएगा क्या, आज शाम को पेंटिंग चाहिए। That's not how it works. And it is something that to create I need my full mind, I need my whole soul, and I need to be a person from inside also. I cannot be painting love and positivity and happiness. That's my agenda towards my painting. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी पेंटिंग का जो सबकॉन्शियस इफेक्ट है वो कंज्यूमर के लिए भी, आर्ट कंज्यूमर के लिए भी काफी हैपनिंग हो, क्योंकि दुनिया में काफी चीजें हैं देखने के लिए, पर मेरी पेंटिंग जब वो देखे, क्या खास है ना, हाँ, जब वो मेरी पेंटिंग देखें तो खुश हो जाएं, बस वो 1 मिनट उनको मिल जाए कि they just have a smile on their face. That's what my first painting also says. Almast. It was named as Almast, which in Sindhi means being in your own world, being happy in your own world. Okay. That word has always stayed with me. I wanted to depict it in my painting, and I depicted it in my first ever exhibition. It was my first ever elephant painting in my first ever exhibition, and
It was in 2019, 6 months Okay. after my college. क्या बात A है, lot of इस people, यंग एज में भी एग्जीबिशन अपना खुद का, a lot of बड़ी people बात है। demotivated me at हाँ, that time as well, that how will you do, you're just a pass out, ऐसा वैसा। जब मैं वहाँ पहुँची तभी भी people had their own opinions, अपने opinions तो लोगों को लगाने आते ही हैं, and they are not wrong, everybody is free to have their own opinions. I have never had a problem with that, but I have always stayed truthful to my own self. मुझे करना है तो करना, little stubborn and little faith in me, because I have always believed that I'm God's child. correct. That is something that has stayed with me. तो वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम माने, एक जिद माने, सब है कि मुझे करना है, मुझे उस पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है। बाकी तो एवरीथिंग इज लक एंड डेस्टिनी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आप जो कर रहे हो ना, आप विश्वास अपने आप पे कर रहे हो कि नहीं, और ये इनमें कूट के भरा हुआ है, दिख रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, सॉरी आई डिस्टर्ब यू। बस अपने विश्वास पे मैंने चालू कर दिया। मैं लेके गई अपने पेंटिंग्स, मिडवे भी मुझे फ़ोन आती है, यहाँ तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आए हैं, हम तो काफ़ी छोटे हैं, ये वो, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, बस चलो, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स इन लाइफ, आई डोंट वांट टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू हैपन। मैं वेट करती रहूँ, ये होगा तो ये करूँगी, वो होगा तो वो करूँगी, क्यों नहीं, अब करना चालू करना है, बस करना है। एंड मैंने किया अपना शो पूरा दिन। आई वॉज विद वेरी सीनियर आर्टिस्ट जिनके लिए मैं 1 साल पहले इंटर्नशिप कर रही थी, वो मेरे साथ हैं आर्टिस्ट, एंड मैंने डिस्प्ले किया है। कुछ आर्टिस्ट काफ़ी सपोर्टिव थे, देख के कि आई एम यंग एंड आई एम यू नो स्टिल शोइंग अप व्हाट आई डू। सम पीपल आर लिटिल कि हाँ ठीक है, काफ़ी यंग है, उनका भी जायज़ है, जब आप काफ़ी यंग एज में कुछ करते हो तो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, और हो रही थी, ठीक है। उससे मुझे उनका जो एक्सप्रेशन है उससे मुझे कोई ये नहीं है कि ऐसा क्यों है या क्या, बट ठीक है, आई वाज जस्ट इन माय ओन वर्ल्ड, आई वाज हैप्पी बिकॉज आई वाज समवेयर, a dream that I've been living, I'm trying to धीरे धीरे, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप मैं अपने जिंदगी की तरफ बढ़ रही हूँ। मैंने बस लगाया, फर्स्ट डे का शो खत्म हो रहा है एंड मैं बस अपने निकलने की तैयारी में, somebody just calls, भाविका go back to your booth. I go back to my booth and that's Adi Jahangir from Jahangir Art Gallery, chairman of the gallery, standing in my booth, the chief guest. I've already met him. पूरा शो उन्होंने विजिट कर लिया था, सबके घर जाने की बारी थी, and he came back to my booth. He said, and I quote, कि he found my painting very happening. Okay. The most happy elephant he's ever seen. And he said that I have MFs and Razas at my place. That man has so many paintings. He's seen a lifetime of paintings. But he wanted my painting in his home. क्या बात है. And that's an achievement. He took it home that day. First day of the show, my first ever show, my first ever painting. And to such a big collector, I was flabbergasted. I was like, मैं वहाँ खड़ी हूँ, I have a roller coaster of emotions happening. सही बात है. क्योंकि ये मोमेंट तो मैंने इतना जल्दी कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चैलेंजेस तो आते हैं, बट यू नो दैट यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, आप कर रहे हो, बस दिल लगा के काम कर रहे हो। How God is going to bless you, you never know. I started in 2018. 2 साल के अंदर कोविड भी आ गया, तो एज अ स्टार्टअप मेरा जो आर्ट जर्नी था वो बस शुरू ही हुआ था कि बंद हो गया, उस पे भी लॉकडाउन आ गया। एंड एक फ्री बर्ड के जैसे मैं अपने स्टूडियो में रहती हूँ, वो मेरा एक अपना एक जोन है, एंड आई नीड दैट एवरी डे, ओनली प्लेस दैट आई वांट टू बी एवर। I stopped going out with a lot of people, this and that. I always am at my studio. Okay. My life happens at studio and after studio. Okay. There's nothing in between. Okay. So that at studio वाला जो time है, people always question कि we are always working, Bhavika, why you're always at your studio? But this is my happy place. Correct. And that happy place was not there for a good 6 months. तो एक आर्टिस्ट जैसे उसका जो क्रिएटिव जर्नी है वो कहीं पे ब्लॉक, एंड आई वाज ऑफ वर्क एज वेल, माय स्टार्टअप वाज आल्सो ऑफ बिजनेस फॉर 6 months and it was little demotivating कि अब कैसे होगा आगे, how will I कब तक चलेगा, कब तक होगा, किसी को मालूम ही नहीं था। एंड द स्टेप, मतलब जो ब्रिक्स मैंने लगाए थे वो फिर शैटर हो गए, फिर मुझे करना है, स्टाफ वाज गॉन, नोबडी वाज देयर। तो मैंने जब 6 months बाद चालू किया स्टूडियो, तो मैंने खुद सामान उठाए,
जो भी था खुद किया खुद अपने एक पेंटिंग को साफ किया और उनको लगाया एंड एक उम्मीद के साथ कि अब मैं फिर से शुरुआत करूँ एंड जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मेरे लाइफ का बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी का जो कॉल था वो जनवरी ओह माय गॉड, इट्स अ बिग प्लेस गाइस, अगर आपको नहीं मालूम है मुंबई सिटी का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी वही है, मोस्ट प्रेस्टिजियस गैलरी ऑफ मुंबई। तो जनवरी 25 को आई गेट अ कॉल दैट फरवरी 23 शो है। सच ए यंग आर्टिस्ट जिसका आधा साल तो कोविड में चला गया 2019 पास आउट, मेरे पास इतने पेंटिंग्स ही नहीं थे, गैलरी तो मुझे मिल गया वहाँ, about 25 paintings I had to display, and I had only 25 days to do that work, and I started कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। Immediately my first ever dial is my parents only, called my parents कि क्या करूँ, and he said कि करना है, mom was like करो, and February 23rd happens to be my spiritual guru's birthday. Okay. I'm a निरंकारी, तो हमारे जो बाबा हरदेव जी है उनका बर्थडे है। Okay. तो my mother just said कि उनका बर्थडे है, कुछ गलत नहीं होगा, क्या बस बात कर ले। तो बस वो उन्होंने कहा और मैं लग गई काम पे। अब ना मुझे पता है कि इतने बड़े पेंटिंग्स का फ्रेमिंग कैसे होगा, इतने बड़े पेंटिंग्स को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े पेंटिंग्स चाहिए आपको 4x4 फीट। क्यूरेटर ने मुझे कहा कि 4x4 फीट, 3x3 फीट, और मुझे अपने कार्ड्स करवाने हैं, पैम्पलेट्स है, बहुत कुछ है। एक आर्ट एग्जीबिशन इज नॉट जस्ट टेकिंग ऑफ पेंटिंग्स एंड गोइंग, आपको उनका सेफ डिलीवरी, उनकी फ्रेमिंग सब देखना पड़ता है। 25 दिन के अंदर मुझे ये सब साइकिल रन करना था, बट फिर भी मैं दिन रात काम कर रही थी। This is one song that I always stick up to, फिर से उड़ चला। जब वो चलता है तो गा दीजिए एक लाइन। Not that great है, बट उसका वो एक लाइन है, किसी मंजिल पर मैं रुका नहीं। तो वो बस मैं किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, वो मुझे that stays with me। बस रुकना नहीं, करना है। But my art is fearless and so is me. So I was always कि कर लो। And I was working on this big 6 feet का पेंटिंग, first ever 6 feet पेंटिंग, मेरी हाइट से भी 1 फीट ऊपर। तो जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ, फ्लो में पेंटिंग बन रही है। 18th of February की बात है ये, कि शाम को I had to leave for a family dinner, and उसके पहले वो पेंटिंग खत्म होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रेमिंग्स एंड ऑल के काम दूसरे दिन से चालू थे। बट somehow जब मैं उसको एक बैकलुक दे रही हूँ, I did not find it the way it was supposed to be. Okay. And as an artist, I cannot display something that is not me. अगर मेरा मन कह रहा है ये नहीं है, तो वो नहीं। And I redid that entire painting. 18th को तो I left my studio, but 19th morning 7 a.m. again the same song that played at my studio. सुबह 7 बजे आके रात के 10 बजे तक मैंने कंटिन्यूस पेंटिंग किया, ताकि वो पेंटिंग बने। It was a huge elephant. And वो मेरे शो का मेन सेंटर पेंटिंग था। अच्छा। तो मुझे वो वैसा ही चाहिए था जैसा मेरे दिमाग में था। एंड इट बहुत बड़ी बात है, जो दिमाग में है उसको कैनवस पे लाना। हाँ, तभी भी मैं डरी नहीं कि नहीं होगा, अब कैसे। Obviously I was a little sad, I cried also, but that next morning when I started, I did not look back. I just had some faith कि हो जाएगा, और हो गया। Okay. 20th तक that painting was in my hand. It was a beautiful depiction of elephant and a parrot. Friendship between an elephant and a parrot. That no matter where you come from, if the friendship is pure, it stays. The both are holding on to a stem of lotus. The purity. That was not named as Yan. अभी ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन है, जो आपको मोटिवेट करता है डेली बेसिस पे, जरा उनके बारे में बताइए। रोल मॉडल मेरा आर्ट वाइज, माय फेवरेट आर्टिस्ट हैज बीन वैन गॉग। आई हैव स्पेंट ऑल माय आर्ट स्कूल स्टडीइंग अबाउट वैन गॉग। मैं हर दिन लाइब्रेरी में बस वैन गॉग की बुक्स, वैन गॉग की स्टोरीज पढ़ती थी। And Van Gogh has been very inspiring to me with my work, and you can see a little bit essence of Van Gogh in my work. I did not do it intentionally, but वो आता है, the color blues, the color yellows जो मैं यूज करती हूँ मेरे पेंटिंग में, वो आते हैं, जो एसेंस है वो वैन गॉग का आता है। मैं फर्स्ट एवर एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, उसमें लोगों ने कहा कि इसमें वैन गॉग का टच है। एंड वर्क वाइज माई रोल मॉडल हैज बीन माई फादर। अच्छा। The way I've seen him work every single day. 25 years of my life I've never seen him late for his work, always excited for his work, always ready to go to his workplace, so that has been a name as well। आपके लिए सक्सेस क्या है, मतलब आप क्या पालेंगी तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगी? I think success
का डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए बदलता जाता सही है। बात, हाँ, और चाइल्डहुड में सक्सेस तो हमको सिर्फ मॉनेटरी पोजेशंस ही बताया जाता है, मॉनेटरी करेक्ट, पोजेशंस ये एंड गलतफ़हमी है। everything. I think money is a blessing that हुँ, God gives you. हुँ, Obviously, that is why it's a part, but it is not everything. हुँ, So for me, success is enjoying where I am today. हुँ, Because even if today is my last day on earth, हुँ, I am living it to the करेक्ट, fullest. हुँ, तो मुझे आज में भी वो खुशी है. हुँ, So gratitude is equivalent to success. हुँ, कि whatever you have today, you're grateful for that. ग्रेटफुल बैड या तो शुक्राना जो मंत्र है वो हमेशा रहा है. हुँ, सबर, शुक्र, तवक्कुल. हुँ, दिस इज व्हाट आई स्टे विद. दिस हुँ, माय मंत्रा फॉर लाइफ. हुँ, कि यू हैव पेशेंस, यू हैव फेथ, हुँ, एंड यू जस्ट लिविंग. आप नाम सिमरन यू आर डूइंग एंड यू हुँ, आर जस्ट एवरी डे यू आर हैप्पी. हुँ, जो भी है मेरे पास खुश है. खुश बिकॉज हैं। लाइफ्स बिगेस्ट ब्लेसिंग इज not realizing what you don't have. हुँ, हुँ, So there are many things that one doesn't have. करेक्ट, But it's also a blessing that God doesn't make you realize that this is something that you lack. हुँ, Whatever you have is sufficient. With सफिशिएंट, art particularly, I want to be in the presence of art all my life, Hmm. spend my entire life. So that's just one quote where I always say कि art is something that that makes you breathe with a different kind of happiness. हुँ, हुँ, And that breath is what I want to stick up to till the last this thing. So till death we do art is what we say. हुँ, And I want my paintings to be in all parts of the world. As an artist, I want people to recognize my work, what I am doing. And when I started with the series of elephants, that was this one thing that I used to always say कि जैसे MF के घोड़े लोग पहचानते हैं ना, वैसे ये भाविका का हाथी है. सही बात, So वो मेरे मन में हमेशा था कि हुँ, लोग, एंड अभी ऐसा होता भी है काफी लोग, दैट बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ एलिफेंट्स. माय काइंड ऑफ एलिफेंट्स, हैप्पी एलिफेंट्स, मेरे एलिफेंट्स चाहिए ओके, जो काफी ड्रीमी भी है. हुँ, तो वो देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि दिस इज भाविका भाविका इज़ मंदानीज डूइंग वर्क. ओके। सो आई वांट दैट टू आपकी हैपन. लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन था जब आपको बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ सिचुएशन से या लोगों से? कुछ ऐसा है हमारी पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए? मोटिवेटिंग लोग भी मिलेंगे हाँ, आपको, पर लाइफ हैज ब्लेस्ड मी विद मोटिवेटिंग पीपल एज हुँ, वेल. हुँ, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं. हुँ, काफ़ी मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी, जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, हुँ, काफ़ी सपोर्टिव रही है. तो डीमोटिवेशन तो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. काफ़ी लोग दे विल कम एंड टेल यू कि हु डज थिंग्स टू सच एन सही बात, एक्सटेंट, बहुत अंडरमाइन करते हैं आप, एंड सही बात है। दिस इज नॉट अ रियल जॉब, हुँ, दिस इज जस्ट टाइम पास, सही थोड़े ही बात। साल चलेगा, इसमें कैसे सही बात है। सरवाइव करेंगे. क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डू दैट समटाइम्स. तो yeah, दे फील दैट हाउ कैन समबडी डू समथिंग. इट्स अ क्वेश्चन, हुँ, एंड जायज़ भी है. जब एक पैटर्न ऑफ लाइफ हर कोई जी रहा है एंड कोई आके वो पैटर्न में ब्रेक कर भी ब्रेक रहा है, करे, करेक्ट, तो वो क्वेश्चन तो आएगा ना आएगा, सबके दिमाग में कि करेक्ट, ये पैटर्न क्यों ब्रेक हुआ, हुँ, रीजन क्या है ये हम्म। पैटर्न ब्रेक होने का. तो बस आप वो जो भी कहते हैं उनको बस आप निग्लेक्ट करके नेग्लेक्ट कीजिए, यू इग्नोर जस्ट कीजिए, मूव ऑन. क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग रहेगा, हम्म। क्योंकि उसकी कंडीशनिंग और लाइफ हिस्ट्री पे वो ओपिनियन बेस्ड है. सही बात, और मेरी लाइफ हिस्ट्री और मेरे ओपिनियन, मेरा बैक स्टोरी पे मेरा लाइफ बेस्ड है. एब्सोल्युटली। तो लाइफ में भी फर्क आएगा. तो वो डिमोटिवेशन को घर नहीं करना. तो भाविका जी, आप आर्टिस्ट हैं, तो मैं एक आपसे ना कुछ करवाना चाहता हूँ। तो आपको मैं 1 मिनट देता हूँ। दोस्तों 1 मिनट मैं दे रहा हूँ इनको, और 1 मिनट में आप जो भी बना सकती हैं, अपना जस्ट टैलेंट दिखाइए हमें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सॉन्ग या ऐसा डायलॉग है जिसको आप सुन के या बोल के अपने आप को मोटिवेट करती हैं? हमारी जनता के साथ शेयर करिए। एक तो मैंने पहले ही बताया, फिर से उड़ चला. ओके। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं. हम्म, तो that song really motivates me every time I want to do something in life. ओके, And that it's never ending. I don't want to stop at any point of time in life. Also I have this one dialogue, शिद्दत पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ. Okay. क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं, शिद्दत plays a very important role. इम्पोर्टेंट रूल, हाँ, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, ये तो यू नो लाइक दे try to judge work according to caliber, skill, this and that, amount of efforts, amount of dedication. लेकिन शिद्दत plays a very big role. सही बात, शिद्दत से आप
बेसिक काम भी करेंगे तो शिद्दत विल टेक यू टू प्लेसेस। हम्म। सो शिद्दत पे किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो द शाहरुख खान डायलॉग विच इज़ वेरी फेमस, शिद्दत इज समथिंग दैट आई स्टिक ऑन। भाविका जी, ये एंड ऑफ द सेशन है अपना। तो बहुत अच्छा लगा कि आप प्लेटफॉर्म पे आए, हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, अपना करियर के बारे में बताया, लाइफ के बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ आपको मैं इसके लिए, और आप ऐसे ही सक्सेसफुल बनें अपनी लाइफ में, ऊंचा मकाम पाएं, और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, आपका प्लेटफॉर्म ही काफ़ी मोटिवेटिंग है थैंक यू। फॉर एवरीवन अराउंड। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत तो सबको सबको रहती पड़ती है, सही बात है। तो नाउ योर चैनल विल बी माय फेवरेट गो टू प्लेस, जब कभी भी थोड़ा डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए ओके, तो वहीं चले जाएंगे। वंडरफुल। एंड आई विल recommend to a lot of young people to subscribe to your channel so that they can know more about people that they've just seen on the screen, in their lives, in their workplaces, but know more about them. तो कभी कभी लोगों को देख के लगता है कि जिंदगी आसान है इनकी, तो पर उसके पीछे की जर्नी आपके प्लेटफॉर्म से अब हम पहचान सकते हैं, वो मेहनत पता चलेगी। So nothing in life comes easy. Correct. And to each its own, that struggle whatever one person goes through, वो पता चलेंगे तो अच्छा ही लगेगा देखने में। सही बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।